ہماری اتنی رچ ڈسکشن کے بعد اب ہم لوگ اپنی آڈینس کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں اور پھر آپ کے پاس مائک لے کر آئیں. میڈم میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو بھٹا مزدور ہیں، لیبر کام کرتی ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں سہارا ویلفیئر سوسائٹی دیپال پور سے ہوں، اکاڑا ڈسٹرکٹ سے. تو لوگوں کو بتاؤ. ہاں، لوگوں کو بتا رہی ہوں سب کو کہ ان کے لیے آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. 16 جنوری کو ہم نے اتنا بڑا پروگرام کروایا تھا وہاں. تو یہ جو لیبر ادھر 140 روپے ہمارے اکاڑا ڈسٹرکٹ میں ہے، ان کی اتنی تھوڑی مزدوری ہے، جبکہ ادھر 180 ہے گورنمنٹ کا یعنی ریٹ، تو اتنا ہونا چاہیے. تو آپ کو ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. سب کے سامنے کے سب ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. دوسری میرا نام پریتم داس ہے، رحمیہ خان سے تعلق ہے. بنی نے کہا کہ پنجاب میں بیگار ختم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی اقلیتی لوگوں سے بیگار لی جاتی ہے. اگر بیگار نہ دی جائے تو دھمکی دیتے ہیں کہ جلی بسترا چاہو، کیونکہ وہ ان کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو مالکانہ حقوق مل جائیں تو یہ بیگار ختم ہو سکتی ہے. اقلیت کے تو ویسے بہت سے مسائل ہیں، لیکن میں نے ایک پوائنٹ پر بات کی. اس پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بات بالکل صحیح ہے. اور یہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جہاں میں کہہ رہی ہوں بیگار ختم ہو گئی ہے، وہ سینٹرل پنجاب کی بات میں کر رہی ہوں. ساؤتھ پنجاب میں ویسے بھی ختم نہیں ہوئی ہے، سدرن پنجاب میں، اور نہ یہ برانی علاقوں میں. تو کافی حد تک ہے بھی بیگار. مگر جو جہاں یہ سینٹرل پنجاب کہلاتے ہیں، ملتان ہے، یہ جھنگ ہے، لاہور ڈسٹرکٹ ہے، شیخوپورہ ڈسٹرکٹ ہے، یہاں ہاں لگ بھگ یہ شہری علاقے ہیں، یہاں کافی حد تک وہ ختم ہوئی ہے. مگر بیگار پورے پنجاب میں نہیں ختم ہوئی، اور اقلیتوں کے لیے تو بالکل ہی ختم نہیں ہوئی. کہیں بھی لاہور میں بھی لے لو. پہلا سوال مریم فلیجو سے، کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 4 لانگ مارچ تقریباً کیے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. ہر حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم بنا رہے ہیں، پھر ہم لانگ مارچ کرتے ہیں، پھر وہ ہٹ جاتی ہے، پھر وہ دوسری بار فیصلہ کرتی ہے، یا نئی حکومت آتی ہے وہ پھر فیصلہ کرتی ہے. تو یہ ایشو ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر حکومت یہ نقطہ کیوں اٹھا رہی ہے، اس کو شامل کیوں رکھ رہی ہے؟ ہم اس طرح کا لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے کہ اس کو بالکل ہی ختم کیا جائے؟ یا جس طرح آپ نے رینجرز کی بات کی کہ ہم عدالت میں کیس کر سکتے ہیں، اس طرح ہم کالا باغ ڈیم کا کیس عدالت میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بھی یہ بات ہے کہ جو بھی پانی کا ایشو ہوگا، آئین میں ہے کہ پانی کا جو بھی ایشو ہوگا وہ واٹر کاؤنسل میں جائے گا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک واٹر کاؤنسل بنی ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں واٹر کاؤنسل بنانے کے لیے یا عدالت میں کیس ڈالنے کے لیے ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ اور کب تک عوام ہمارے ساتھ کب تک لانگ مارچ کرے گی؟ 4-5 ظاہر ہے لوگ بیدار ہو جائیں گے، کچھ ہو نہیں رہا، ہر سال یہ ہوتا ہے. تھینک یو. اور دوسرا سوال میرا سعید بلوچ سے، کہ انہوں نے جو بدین کی ان کی تحریک چلی تھی رینجرز کے خلاف، وہ بھی بہت ہم نے پڑھا اور بہت ان کی کامیابی. دوسری یہ منچر کو کیوں اگنور کریں؟ منچر کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، حالانکہ منچر میرے خیال میں جتنی تباہی منچر میں ہوئی ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہوئی. جیسے مین ناڑا ویلی جو تھی پہلے فریش واٹر لاتی تھی سندھو دریا کا پانی، اب اس کو سم نالے میں تبدیل کیا گیا ہے، جو پورا تباہ کر دیا، اس منچر کی مچھلی کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، مائگریشن ہو رہی ہے. اس سلسلے میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا، کوئی بھی ان کا وہ بالکل لاوارث ہے. اس سلسلے میں مجھے پوچھنا. تھینک یو. میرا جواب یہی ہے کہ جو جیسے پارٹیشن ہوا ہے اس کے بعد جمہوریت تو ہے ہی نہیں، آئی نہیں ہے. چور دروازے سے حکومت آئی ہے، غیر جمہوری طریقوں سے حکومتیں آئی ہیں، اور زیادہ تر جو تسلط حکومت کا ہے وہ زیادہ تر فوجی حکمران ٹولوں کی آئی ہے. تو ان کی جو منشا ہے کہ یہاں سے جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے یہاں کی، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ ان کے خواب تھے. یہ رنجیت سنگھ کا خواب تھا کہ پورے پنجاب کو آباد کرنے کے لیے یا سیراب کرنے کے لیے پہلا ان کا خواب تھا. اس کے بعد سندھو تاس بنا، اس کے بعد لنک چشمہ کا اعلان بنا. یہ جو تھا اسی وجہ سے کہ یہاں کی جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے وہ آباد کرنے کے لیے اور ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے سندھو دریا. تو جو حکمران تھے وہ جو چور دروازوں سے آئے تھے، جو
जमहूरियत से नहीं आए थे, और वो जो फौजी तसल्लुत समझो फौजी हुक्मरान टोले थे, उनकी मर्जी थी, उनकी मंशा थी कि ये जो सिंध है उनको बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया जाए और पंजाब को सैराब किया जाए। और जो सिंध जो अपने मालियाती इदारों से अरबों खरबों देती है, उनका हिस्सा ही ये नहीं देते हैं, 10वां हिस्सा या चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा ही तरक्की के नाम पर नहीं देते हैं। तो पानी जो उनके कब्जे में है, जिनके ऊपर ये बंद बांध रहे हैं, जिनको वो नफ़ा पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो कैसे इतने बड़े नफ़े को हाथ से जाने देंगे? वो तो कतई नहीं जाने देंगे। चाहे हम, मगर हमारी कोशिश है कि हम जितना भी हो सके अपने मुल्क को, अपने दरिया को बचाएं। हम बार बार लॉन्ग मार्च करेंगे, ये चौथी नहीं है, मगर हम 40-50 लॉन्ग मार्चें करेंगे जब तक हमारे ये मकसद हम कामयाब नहीं होंगे और हम सिंधु दरिया को नहीं बचाते। वैसे भी इससे पहले जो आलम आश्कार बात है कि ब्राज़ील में 1997 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, उसमें 20 मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था। वो सताए हुए थे बड़े डैमों की, जहाँ तबाहकारियाँ मचाई थी डैमों ने, नकल मकानी हुई थी लोगों की, और उनको फिर उन जमीनों की उजरत भी नहीं मिली थी। ये उन लोगों ने क्या एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि ये बड़े डैम जो है वो नहीं बनने चाहिए, उसके बदले में छोटे छोटे डैम जो है वो बनने चाहिए। हालांकि छोटे छोटे डैम बन सकते हैं, वो बनाने के लिए छोटे डैमों के बनाने के लिए कोई हर्ज भी नहीं है। अपना पानी जो है, जब पानी हो, अब ये है कि सैलाब आए, बरसात आए, ये हो वो हो, तो बरसात कब आएगी ये तो कह नहीं सकते हैं। बरसात होगी तब। अब जो थल को आबाद करने के लिए उन लोगों ने वो जो बनाया है, क्या बनाया है, थल कैनाल भी बनाया है, और एक वो रैनी पता नहीं क्या नाम दिया है, वो भी पंजाब ने अपने गंदे पानी को निकास के लिए नाम दिया है कि थल को आबाद करेगी, मगर गंदे पानी के निकास के लिए वो बना दिया जिसे बहुत तबाही आएगी। आगे चलकर वो जो तबाही आएगी वो दुनिया देखेगी कि उससे क्या क्या तबाहकारियाँ होती है। तो उनके मफाद है, तो लॉन्ग मार्च तो हम करेंगे। हाँ, मैंने शुरू में ही कहा कि चूंकि मैं एब्सेंट था तो मुझे समझ रहा था कि शायद बहुत से पानी के इशूज़ पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान फिशर फोरम ने जैसे आपके सवाल के मुताबिक हमने तो पहले ये किया कि हमने जाके मंचर झील में बेस बनाई। गुलाम मुस्तफा मीरानी जो मंचर झील से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान फिशर फोरम के वाइस चेयरपर्सन। वहाँ फिशर फोरम ने अपने यूनिट बनाए, वहाँ लोगों को ऑर्गेनाइज किया। तरीकाकार भी हम लोग यही करते हैं कि जहाँ पर तंजीम होगी तो वहाँ पर काम होगा। आज आप देखें कि मंचर से सैकड़ों लोग परसों हैदराबाद आए। हैदराबाद में फिशरीज डिपार्टमेंट का हमने घेराव किया, उसके साथ बदीन और टट्टे से भी हमारे साथी आए थे। फिशरीज हुकाम वहाँ से भाग गए, जो सीनियर डायरेक्टर थे, मिनिस्टर तो भाग गए, वो आए और उन्होंने हमारे साथियों के साथ 2 घंटे मुज़ाकरात की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम लोग कोई भी झील और दरिया का टेका नीलाम नहीं करते। मंचर झील जो खूबसूरत झील हुआ करती थी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा जो बोट होती थी, जो फैमिली बोट कहलाती थी, उसको इन्होंने मैं फिर वही पुरानी बात कहूँगा कि पॉलिसी होने और ना होने की वजह से हमें इन्होंने नुकसान किया और हमारी खूबसूरत झील तबाह हुई। जहाँ लाखों टन मछली निकलती थी, अब लोग वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, और लोग मजबूर हैं कि वो अपना आबाई इलाका छोड़ के वो पंजाब आए, तोड़सा में आए, यहाँ तक के लोग अफगानिस्तान तक गए। अब पिछला अगर आपने भी देखा होगा तो राइस कैनाल के ज़रिए जो एकदम जहरीला पानी मंचर में छोड़ा गया, हैदराबाद के शहरियों ने पिया तो कुछ 40-50 लोग उस गंदे पानी की वजह से मारे गए। वो काउंट नहीं होता जो लोग देहात में रहते हैं, क्योंकि जहाँ अल्लाह की मर्जी से इंसान जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं तो वहाँ तो काउंट ही नहीं होता। चूँकि शहरी लोगों ने थोड़ा पानी पिया तो अस्पतालों का रुख हुआ, अस्पताल भर गए, तो मालूम हुआ कि ये
रीजन थे। पाकिस्तान प्रेशर पोक फोरम जो एक बात का मैं आपको ज़रा ये बताता चलूँ कि हमने इस मुल्क में चूँकि कोई फिशरीज पॉलिसी है ही नहीं, तो पाकिस्तान फिशर पोक फोरम पिछले 2-3 सालों से मुसलसल अपने कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, वर्कशॉप के ज़रिए, मुख्तलिफ इलाकों में विजिट्स के ज़रिए, छोटी मीटिंग्स के ज़रिए, एक दूसरे से कतो कताबत के ज़रिए, एक हमारा एक और तरीका होता है वो रात की कचहरी के ज़रिए, तो एक अच्छा कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ तंजीमें, जो CBOs हैं, जो इलाकों के नाम से, छोटे छोटे ज़ात के नाम से जो जमायतें बनी, इन सब के साथ मुश्तरका तौर पर बातचीत के डायलॉग के ज़रिए हम लोग एक इस मुल्क के लिए एक फिशरीज पॉलिसी बना रहे हैं और तकरीबन एक तरह से वो मुकम्मल हो चुकी है। और एक लास्ट हमारा पायदार फिशरीज़ के हवाले से एक सेमिनार है, उसमें हमारी कोशिश है कि हम सारे मुल्क से जो एक्सपर्ट हैं, जो स्टॉक होल्डर हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे और वो पार्टियां जो गरीब आवाम के दावेदार बनती हैं, उनके लोगों को बुलाकर उसको आखिरी शक्ल दें, फिर उन तमाम लोगों को मजबूर करें कि आप इस पॉलिसी को ले जाके असेंबली में ले जाएं ताकि इस मुल्क के लिए कोई पायदार फिशरीज पॉलिसी हो। तो उसमें एक कंपोनेंट तो एनवायरनमेंट का है। पाकिस्तान फिशर पोक फोरम कहता है कि पूरे मुल्क में जो तबाही सीवरेज के पानी की वजह से, जो गंदे पानी की वजह से, उसका जो सॉल्यूशन है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करे। एक डिस्ट्रिक्ट का गंदा पानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दाखिल ना, हर डिस्ट्रिक्ट अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, अपने गंदे पानी को ट्रीट करे, फिर वो नदी नाले समंदर में जिस तरह बहाए। तो ये पूरे पाकिस्तान के ज़रई ज़मीनों की बका का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान के आबी वसाइल हैं, उनकी बका का मसला है, और करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर पाकिस्तान ने ये काम हो गया तो हम समझते हैं कि आधा पाकिस्तान गंदगी के ढेर से दूर हो जाएगा। अच्छा, मेरे जो 3 साथियों के 3 सवाल हैं, तो वैसे तो निगाह सईद खान से बहुत सवाल बन जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट। सईद बलोच साहब हैं, इन दोस्तों ने कहा है कि जो सियासी पार्टियाँ कुछ भी नहीं कर रही हैं। खुद शुरुआत में खुद कहता है कि मैं आज जो कुछ बोल रहा हूँ, जो फिशर फोक ने मूवमेंट चलाई है उसमें ये मैं सियासी तौर पे जो हमारी तरबियत हुई थी उसमें उसका हाथ था। फिर ये मायूसी फैलाने, मेरे ख्याल में सियासी पार्टियों, ये तो सब इदारों में आ गया है, NGO में भी आ गया, सब जगहों पे सियासी इदारों को इतना हम अगर इस खाने में डालेंगे तो मेरे ख्याल में इस पर भी थोड़ा बड़ी बात हो जाए। दूसरा इसाक बलोच साहब का था कि या तो वो जो बलोच हैं खुदकशी करें या तो पहाड़ों पे चढ़ जाए। मेरी कोई बीच में भी रास्ता होता है, हम थोड़ा अक्ल की बात भी करें, इन चीज़ों से हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हम इस फोरम से बात कर रहे हैं, मैं उसमें वैसे तो एक जो बात है, मैंने किसी दोस्त को पूछा था कि सराइकी का मसला जो है, तो उसने जवाब दिया था कि लोगों को तो पता ही नहीं थी सराइकी, बराबर जो सराइकी तारीख चल रही है, वो जो इसकी आवाज़ उठ रही है, दोस्तों के साथ जाते हो रही है, तो वो कह रहा था कि लोगों को तो पता ही नहीं थी। तो यहाँ पर भी बलूचिस्तान में भी ये सूरत हाल है। हमारे नजरियाती दोस्त हैं, कामरेड हैं, मेरे ख्याल में इसमें भी सरदार जो है थोड़ा आगे आगे हैं। ये भी किस्म की जो मुशर्रफ है, फौज भुट्टी, आप ये कल भी हमारी बातें हुई हैं, आप समझते हैं कि उसमें बाकी जो गवादर की आप बात कर रहे हैं, 1 लाख का उस ज़िले की आबादी है, उसमें 9 लाख बढ़ाएंगे तो वो तो फिर उसकी सूरत हाल ये बन जाएगी जैसे तरह से सिंधु की कराची में है, बलोच की वाकई वहाँ पे ये सूरत हो जाएगी। तो आकाश का भी दूसरा शेर था, तो मुझे हूँ दे मुझे नहीं गया तो तू भी को सिंधु जो शहर आई, जिंदगी के जलील घड़े में से आज ही बहुत ही खबर आई। वो कहता है कि तुम मेरे होते मेरे नहीं हो, जिस तरह सिंध का शहर है वो सिंधु का नहीं है सिंध का, लेकिन वो सिंधु का नहीं है। तो जिंदगी के जलील घड़े हो जैसे ज़िया की मौत हो, तो बलूचिस्तान वाकई इस तरह के सूरत हाल रहेगी कि हम अगर इस तरह रहे। इसाक की बात को थोड़ा आगे से बढ़ाकर मैं देखें, हम लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, बहुत इजी होता है कि मुझे बहुत गुस्सा है, मैं एंग्री हो जाऊं तो मेरे पास कराची में प्रेस क्लब है, आर्ट काउंसिल है, ये सारे इस रोड पे बंद रोड पे कहीं ना धरना दे के मैं अपना खुद को एग्जास्ट कर सकता हूँ, अपना इजहार कर सकता हूँ।
कुछ भी नहीं तो 2-4 अखबार के नुमाइंदे आ ही जाएंगे, कोई नहीं, जियो नहीं आए तो KTN जरूर आ जाएगा। तो ये एक होता है कि आप अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हो, आपका फोटो कल छपेगा, लोग देखेंगे अच्छा अभी फिशर फोक के लोगों ने या दूसरे लोगों ने मुजाहरा किया, ये किया। अब उसका एक बात ये कि एक शख्स ऐसे इलाके में रहता है जहाँ कोई मकामी अखबार शाया नहीं होता, जहाँ उसके बाकी शहर से जो लिंक है वो बहुत फासले पर है, वहाँ उसकी जो कोई तहरीक चले या कोई उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका धरना हो, उसका दूसरे सुबह आप किसी TV या अखबार में उसको नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ आम आदमी के पास इज़हार का क्या तरीका होगा? तो शायरी उसके पास इज़हार का जो तरीका होगा वो हिट एंड रन होगा ना, वो आपको मिसाइल मार के भाग जाएगा, वो रॉकेट लॉन्चर चला के भाग जाएगा। मैं अभी दूसरी बात पूरी करूँ, ये इसाक के सपोर्ट में था। अच्छा, भाई ने बात की कि भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से मायूसी फैला रहा हूँ, नहीं ऐसी कतई बात नहीं है। मैंने कहा कि मैंने ये 83 से 88, 89 तक ये वुमेन एक्शन फोरम और 30 सारी तंजीमों के साथ जो मेरा लड़कपन था, मेरी टीनेज थी, मैंने इनके साथ सारा काम किया। मैं आज उन लोगों को देखता हूँ, मैं चलो आप लोगों को छोड़ दें, आप बेनज़ीर की मिसाल ले रहे। बेनज़ीर एक औरत होते हुए एक लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक खूबसूरत नारे, क्या बेनज़ीर हुकूमत में आकर उसने औरतों के खिलाफ कवानीन को खत्म करने की कोशिश की? क्या अपोजिशन में होके, ठीक है आपके हाथ बंधे थे, यू आर नॉट अ फ्री, आपने जिसने अपने पहली स्पीच में कहा कि वो फ्री एजेंट नहीं है, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए एक करारदाद तो पेश की जा सकती है। एक औरत 10 मर्दों को पैदा करे और उस औरत की अपनी गवाही आधी हो, क्यों? मैं इनकी बात कर रहा था। और फिर रहा बात, आज आप देखते हैं कि फिशर फोक फोरम के बहुत सी सियासी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, वो इसीलिए करती है कि हमने अपने मूवमेंट को मजबूत किया, हमने वहां पर किसी सियासी पार्टी के लिए जगह नहीं छोड़ी। जो शख्स मुस्लिम लीग काफ में हो, नून में, पीपल्स पार्टी में हो, अगर वो वहां पर फिशर फोक फोरम की मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती है तो शायद वो आइंदा वहां पर इलेक्शन जीत नहीं पाएगी। तो मैंने जो अपनी बात की थी वो ये थी कि हमें अपनी जो कम्युनिटी की मूवमेंट है, अपने जो पसमानदा जो लोगों की जो तहरीकें हैं, उनको इस कदर मजबूत करना चाहिए कि वो सियासी पार्टियां आपकी बात को असेंबली तक पहुंचाएं। वो मजबूर हो कि अब इनकी बात नहीं करनी तो इसका मतलब है उस इलाके में सियासत भी नहीं करनी। ये बात है। निगर साहिबा से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे ये रिसर्च की जा रही है या ये बात हो रही है कि जो रेंजर्स है वो गांव में या शहरों में दाखिल नहीं हो सकती, तो वहाँ पे ये भी देखा जाए कि चोलिस्तान की जो ज़मीनें आर्मी को अलाट की जा रही हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक 80 to 90% ज़मीनें आर्मी वाले खुद काश्त नहीं करते बल्कि उनको सेल आउट करके चले जाते हैं। तो हमारे लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि हम ये रिसर्च करें कि कितने आर्मी ने कितनी फीसद ज़मीनें बेच दी हैं ताकि आइंदा वो किसानों को ज़मीनें अलाट की जाए, ना कि आर्मी वालों को। दूसरी बात ये कि मज़ारीन के हकूक़ की बात हो रही है, तो इनके साथ साथ हम ये भी देखें कि अगर इनको ज़मीनें मिल जाती हैं तो WTO की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन पर कितनी ज़्यादा इफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर ज़मीनें होंगी भी तो WTO की जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद आने वाले दिनों में मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़ेर साया इन किसानों के लिए थोड़ी ज़मीनें होते हुए इनको काश्त करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। थैंक यू। ये आखिरी सवाल है और इसके बाद हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। मेरा ये सवाल भी हो सकता है, राय भी हो सकती है कि भाई ने कहा कि आखिरकार हमारे इजहार का क्या तरीका होना चाहिए, हम किस तरह इजहार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये मेरे एक शेर, 2 शेर हैं मेरे, वो मैं पेश करना चाह रही हूँ। मेरे वतन मेरी धरती को बेचने, एक बलोची शायर है, मेरे वतन मेरी धरती को बेचने वाले इतने बेशर्म हैं कि शैतान को भी उनसे शर्म आती है। वो कौम की तबाहियों पर अपने कद की इमारत खड़ी करते हैं, वो कौम की हिफाजत का दावा करते हैं, अपने आप को मुहाफिज करार देते हैं, लेकिन
वो खुद ही उसकी तबाही के दर पे है। फिर मेरा जवाब उनको ये है, सब साथियों को, चलो उठे, जमीन खोदें, नई मिट्टी निकालें और उसमें अपने दिल बो दें, उसे सैराब कर दें अपने जज्बों के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न मैं खुश हूँ न तुम खुश हो। चलो उठो, बिखर जाए, नए आफाक ढूंढे, आसमानों में उतर जाए, वतन की खाक को सूरज का आईना बना डालें, नई रस्में वफा डालें, वफा मैं भी हूँ, वफा तुम भी हो, चलो उठो, बिखर जाए। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए, सवाल ही आ रहे हैं। नहीं, आप बोले नहीं बोले मेरा सवाल को इस किस्म का नहीं है। मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये किसानों के हकूक़ की या किसान के मसाइल की या मदारिन के सारे पाकिस्तान के हवाले से, इलाके के हवाले से बात हुई। मेरा ताल्लुक सहराए थर से, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से है। वहाँ पे हारियों का एक बड़ा मसला यहाँ पे जो फसल, वैसे तो वो रेन फेड एरिया है, बारानी वहाँ पे ज़राअत होती है, पानी वगैरह का वो तो है नहीं कि कैनाल इरीगेशन। वहाँ पे जो 47 में पार्टीशन हुई है या उसके बाद 71 में जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं उसको वो एक अलमिया है कि वो एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, कि वो इतने सालों से वो जो हारी उसको खेती बाड़ी कर रहे हैं या उसकी सोइंग कर रहे हैं, आज तक उनको मालकाना हकूक नहीं मिले। कितने वो वज़ीर आज़म आए, वज़ीर आला आए, ऐलान होते हैं और वाज़े वहाँ पे कोई लैंड ग्रांट पॉलिसी नहीं है। मेरा ख्याल है इस इश्यू को भी उठाना चाहिए कि वाज़े वहाँ पे जो पटवारी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो अपनी मर्जी पे इतनी उसकी मिली भगत है कि वो ज़मीनें उसमें जोड़ तोड़ करके वो कागजात बदल देते हैं। इतना बड़ा थर्ग में बड़ा एक वहाँ का ये इशू है। इसी हवाले से मेरा ख्याल बात होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक WTO का है और छोटे मज़ारों का है, तो वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ज़मीनें मिल भी जाएं वो एक पहला कदम है। और उसके बाद जो पॉलिसियाँ हैं, ना सिर्फ कि किस किस्म की अनाज होगी, ना सिर्फ ये कि किस किस्म की बीज आप बो सकेंगे, ना सिर्फ ये कि कौन सी बीज खरीदने देंगे या मरने देंगे, और ये भी कि पानी प्राइवेटाइज हो रहा है तो पानी भी खरीदना पड़ेगा। तो उनकी तो हैसियत वैसे भी कुछ नहीं होगी उसके बाद। तो यही हमने देखना है कि अगर हम कुछ मांगते भी हैं, हम पूरी जो दुनिया में हो रहा है वो भी देखें और मुखालफत अपनी वहाँ भी करें, राय हमारी सामने वहाँ आए। WTO कोई ऐसा मतलब नाफिल नहीं हुआ है आसमान से। WTO एक मुआहदा है और वो मुआहदा बदल भी सकते हैं, उसके अपने तरीक़ेकार हैं, उसके कि जितने मुल्क कहेंगे, और अगर 80 मुल्क कहते हैं कि इसको हमने फिर से खोलना है तो वो हो सकता है। तो हर एक तरफ हमारी मूवमेंट ये भी होनी चाहिए कि हम अपनी हुकूमत को कहें कि ये इसमें नुकसान है अक्सरियत का, तो यहाँ ये हम ये तो वाकई इस पर रिसर्च भी करनी चाहिए, देखना भी चाहिए और आगे हमें ताकि अगर मिल भी जाए ज़मीन तो वो नुकसान ना हो और फ़ायदा हो। दूसरी तरफ ये जो बात आई है कि थरपारकर की ज़मीनें वो वही हैं जो रियासत के हाथ में हैं, कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं कि लोग चले गए 47 में या 71 में, तो उनकी ज़मीनें अभी तक रियासत के हाथ में हैं, ओनरशिप मलकियत रियासत की है, और उसको अभी तक पंजाब में तो क्राउन लैंड यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जो क्राउन लैंड है उसके नाम से लिखत पढ़त होती है। साथ साथ आपने जो रेस किया कि पार्टीशन से पहले क्या तारीख थी, वो वाकई एक बहुत लंबी कहानी है, मगर ये और क्या सूरत हाल था ये हमें मतलब कुछ काम मैंने किया हुआ है, मगर तफसील से इस पर ना सिर्फ काम होना चाहिए, एक बहस होनी चाहिए। दूसरा जो आपने शायद एक मेरी तरफ ही कुछ अपनी राय दी थी, तो वो इत्तेहाद की। अब इत्तेहाद का यही है कि ना सिर्फ उस इलाके में, उस डिस्ट्रिक्ट में, मगर और ना सिर्फ ये कि सिर्फ किसानों की इत्तेहाद हो। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हमारे इश्यूज आते हैं, जो मजलूम तबका है या अक़लियतों का है या औरतों का भी है, अगर हम मिल के उस पर ना चलें, अगर हम मिल के उस सामने वो चीज़ ना लाएं, ये हमने ज़रूर देखना है। क्योंकि एक सवाल ये भी उठा था
کہ کیا حکومتیں یہ آتی ہیں اور جاتی ہیں مگر سچویشن نہیں بدلتی. یہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک طبقاتی نظام ہے. جو طبقہ کنٹرول کر رہا ہے وہ کبھی کس پارٹی میں ہوتا ہے, اس پارٹی میں ہوتا ہے, اس پارٹی میں ہوتا ہے. اپوزیشن میں وہ چیزیں کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, مگر یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہ طبقہ صرف اپنے لیے پالیسیز لائے گا, اپنے مرضی سے اور اپنے مفاد میں. وہ عام لوگوں کا فائدہ کبھی نہیں کریں گے چاہے وہ کچھ بھی کہہ دیں. عورتوں کا کچھ نہیں کریں گے چاہے وہ کچھ بھی کہہ دیں. آج کل کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو بلوچستان پہ نہیں بول رہی, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے یہ کاف کے لوگ ہوں, چاہے وہ مطلب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ایکشن نہ ہو. اب آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ عابدہ حسین اور فخر امام بلوچستان گئے تھے. میں ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور انہوں نے آج اخبار میں کہا ہے کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں وہ ہو رہا ہے. تو میں 3-4 سالوں سے ان کو کہہ رہی ہوں, ہم ایک ہی گھر میں رہتے, تو وہ نہیں مانے. اب کیونکہ وہ مخالفت کر رہے ہیں پرویز مشرف کی تو اس پر بھی وہ جا کے پھرائے, کوئٹہ پھرائے. اور بے نظیر پیپلز پارٹی وہ بھول گئے ہیں کہ 1970s میں کیا ہوا تھا. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. جو آپ نے کل مبشر صاحب سے پوچھا تھا, اگر ڈاکٹر صاحب میں وہاں ہوتی میں کہہ دیتی کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مخالفت ہوئی تھی, اور یہ لوگ اگر کل حکومت میں آئیں گے تو یہ بھی وہی کریں گے. وہ صرف پرویز مشرف کے خلاف ہیں, اور وہ پرویز مشرف کے خلاف ہے, ملٹری کے خلاف بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی سہارا ملٹری کا ہی لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں 1947 سے ہی اور پھر بعد میں 50 سے تو سہارا ملٹری کا یہ ہے. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو ملٹری کو کہتے ہیں کہ آ کے حکومت چلاؤ یا ہمارا ساتھ دو, ہمارا ساتھ, اس کو ہمیں صدر بنا دو, اس کو اتار دو, اس کو ہٹا دو یا اس کو گرا دو. اور وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے بے نظیر کو گرایا, وہی سیاستدان ہیں جو نواز شریف کو گرایا, وہی سیاست. اور وہ ہر دفعہ کہتے ہیں ملٹری کو کہ ہمارا ساتھ دو اور ہم گراتے, کیونکہ وہ ایک کلاس ہے, ایک بھائی ایک میں ہوگا, ایک بھائی دوسرے میں ہوگا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو جدوجہد یہ ہوگی یہ ایک سیاسی ہوگی اور طبقاتی ہوگی. یہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ اتحاد نہیں ہو سکتی, یہ ہو سکتی ہے, مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے طبقے کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس اتحاد میں اور اس جدوجہد میں کون شامل ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ لیفٹ کی طرح, سب سے جو غلط بات اس میں ہوئی کہ ہم نے ایکچولی ایز اے لیفٹسٹ ہم نے یہاں کام نہیں کیا ہے. یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے میں آ کے ملاؤں, کام ہمارا ہوتا ہے اگر ہم لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے جو سکلز جو ہمارے اپنے فائدے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز میں پڑھیں, یہ کریں, اس پر کام کریں. اب آپ دیکھیں گے پہلے وہ کمیونسٹ پارٹی روس کے ساتھ لگی ہوئی, جو روس کہتا ہے وہ کرتے, پھر وہ چین بھی بیچ میں آ گیا تو وہ ٹوٹ گئی اور مزدور کسان پارٹی بن گئی, ایک چین کی طرف ایک روس کی طرف. دونوں سے کچھ نہیں سیکھ رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یا وہ جو چیز ہے آپ اس کا فلسفہ لے سکتے ہیں مگر حقیقت تو نہیں ہے وہ یہاں. بھئی روس کی حقیقت اور پاکستان کی حقیقت میں بہت فرق ہے, تو آپ پورا کا پورا تو اس کا پلان نہیں چلا سکتے. یہاں آپ مارکسی اور یا لینن کی ایک تصویر لے سکتے ہیں یا ماؤ کی, مگر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہونان پروونس چین میں یہ تھا تو گوجرانوالہ پہ بھی یہی ہوگا یا لڑکانہ میں وہی ہوگا. وہ بھی نہیں ہوگا کہ جو گوجرانوالہ میں ہے وہی بدین میں ہوگا. تو ہمیں یہ کرنا ہے, یہ ہم نے اوکاڑا اور خانیوال میں دیکھا جب میں نے جا کے وہاں کام کیا کہ ہر گاؤں میں کچھ اور ہے. کوئی سیٹ کارپوریشن ہے تو کوئی ملٹری والے ہیں, تو کسی کی اپنی زمین ہے چھوٹی اور کسی کی اور ہے, کسی کی اور ہے. جب تک ہم اس کی شکل سامنے نہیں لائیں گے ہم کر بھی نہیں سکتے یہ کام. اور یہ کام ہمارا ہے, مطلب کرنا چاہیے, کیونکہ لینن بھی انقلاب نہیں لایا تھا, اس کے ساتھ کوئی 1000 لوگ ایسے تھے جو کر رہے تھے تحقیقات. وہ خود اس نے 50 کتابیں لکھی ہیں, تو وہ کیا کر رہا تھا, صرف انقلابی بن کے نعرے لگا رہا تھا, کچھ کر ہی رہا ہوگا, کچھ سوچ رہا تھا, کچھ پلاننگ کر رہا تھا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں خود, اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ روس میں کیا ہو رہا ہے.
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور اس پر ہم منشور بھی اس موومنٹ کا بنائیں اور آگے اس پر بات کریں، مگر اس جلد بازی میں بھی نہ آئیں کہ اگلی حکومت آئے گی تو ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا. وہ پہچانے کہ وہ اسی کلاس کے لوگ ہوں گے. جب تک آپ لوگ آگے خود نہیں آئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ کلاس نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی ہم نے جدوجہد کرنی ہے. شکریہ.